Hi guys, so this is going to be your part 3 of your automatic grammatizator. Okay, now we are going to left with our next three parts. Okay, as you all know, we have divided this entire short story into six parts. Three we are going to complete today, and rest three we are going to complete in the further more times. Okay, so let's start without wasting no more time. This is going to be a short lecture because only one page is associated with this part. Okay, so I hope you know the grammatizator first of all. Okay, I have already shown you, but that is not grammatizator. As I have told you previously, that was not grammatizator. That was typewriter. Okay, this is grammatizator. Now the difference, the slight differences in grammatizator and typewriter is that in grammatizator you are having the images, exact images. What you want to click, that particular image will on the screen, and that particular image will go on the paper. Okay, means suppose let's take an example. You have to paste a Chota Bheem, isn't it? I hope you all are well versed with Chota Bheem, a cartoon character, isn't it? So you want to paste Chota Bheem picture in your in your like book, in your story writing book. So in your typewriter there will be a space key, there will be a key, basically there will be a button on which the Chota Bheem will be it will be framed, it will be made, okay, by the scientist. And as you press that particular Chota Bheem wali key, the like picture of Chota Bheem will paste on your paper. So that this is grammatizator. And what is typewriter? Typewriter, simply you are having the letters, isn't it? This is a slight difference between typewriter and grammatizator. We're gonna talk about typewriter and grammatizator in this short story as well. So let's start without wasting no more time. So ओके, सो द स्टोरी एंड्स इन द लास्ट पार्ट जब जॉन बॉलिन ने कहा था कि ऐसे तो जो मैंस हैं वो बिलियनर बन जाएंगे, है ना। इतना वो कर करके बैठे बैठे वो लोग मैगजीन्स को लाइक दे विल पे मनी, ओके, लाइक दैट टू अ मैन फॉर, ओके, बस वो मैगजीन से स्क्रिप्ट कर रहे हैं स्टोरीज़ को एंड पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसे तो वो बिलियनर बन जाएंगे, इजंट इट। तो इसी पे अब मिस्टर बॉलिन जो है, वो सॉरी नाइप जो है, एडोल्फ नाइप, वो रिस्पॉन्स करता है। दैट्स एग्जैक्टली इट सर, दैट्स एग्जैक्टली इट मिस्टर बॉलिन, दैट्स वेयर द मशीन कम्स इन। लिसन अ मिनट सर, व्हाइल आई टेल यू सम मोर, आई हैव गॉट इट ऑल वर्कड आउट। ओके, हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर बॉलिन। दैट्स वेयर द मशीन कम्स इन मीन्स जहाँ से मशीन आई है। लिसन अ मिनट सर, व्हाइल आई टेल यू सम मोर, आई हैव गो इट ऑल वर्कड आउट मीन्स मैंने इस मशीन की सारी जानकारी आपको मतलब सारी जानकारी निकाल दी है। ओके, मैंने जो मशीन्स होती हैं, जो ये मैगजीन्स वाली मशीन्स होती हैं, इनकी सारी जानकारी निकाल दी है। द बिग मशीन्स आर कैरिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 फिक्शन स्टोरीज इन ईच इशू मीन्स जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो हर बार में 3 फिक्शन स्टोरीज को लिखती हैं। ओके, 3 फिक्शन स्टोरीज को लिखती हैं। नाउ टेक द 15 मोस्ट important magazine, the one paying the most money. A few of them are monthlies, but most of them comes out every week. मतलब 15 बहुत important magazines हैं, जो बड़ी बड़ी magazines हैं, ओके, दे आर कैरिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 फिक्शन स्टोरीज। उनमें कम से कम बड़ी बड़ी मैगजीन्स में 3 फिक्शन स्टोरीज होता है हर बार में। ओके, नॉट टेक द 15 मंथली इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, मतलब 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन को लेते हैं। ओके, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा रुपए कमाती हैं, सबसे ज़्यादा रुपए लेती हैं। ओके, और इनमें से कुछ तो मंथलीज हैं। मंथलीज मीन्स मंथ में आने वाली, वीक्स मीन्स जो वीकेंड्स पे आती हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ तो क्या है, मंथलीज हैं, मतलब कुछ मंथ्स में आती हैं, इजंट इट। देन बट मोस्ट ऑफ देम कम आउट एवरी वीक, ऑल राइट, पर ज़्यादातर जो होती हैं वो वीक में ही आती हैं, मीन्स वीकेंड्स पर ही आती हैं ज़्यादातर मैगजीन्स जो होती हैं। दैट मेक्स लेट अस
say around 40 big stories being bought each week. मतलब हर वीक हर हफ्ते कम से कम 40 से 50 बड़ी बड़ी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये जो मंथलीज वाली होती हैं, ये मैगजीन्स मंथलीज वाली जो मैगजीन्स होती हैं ये छापती हैं या पेस्ट करती हैं. ओके, देन that's $40,000. So with our machine, when we get it workly properly, we can color nearly the whole of this market. Means जब वो छोटी छोटी machines जो हैं वो वीकेंड्स की लाइक मैगजीन्स को मंथलीज की जो मैगजीन्स होती हैं, वीकेंड्स की जो मतलब हर वीक्स में जो मैगजीन्स आती हैं उन्हें पेस्ट करती हैं, तब उन्हें कम से कम $40,000 मिलते हैं. ओके, तो आप खुद ही सोचिए, जब हमारी मशीन मार्केट में जाएगी और वो बहुत अच्छे से काम करेगी, मीन्स वो बहुत सारी स्टोरीज़ को पेस्ट करेगी, तो वी कैन गेट द एंटायर मार्केट. मतलब हम पूरी मार्केट ले सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीन्स हैं वो पूरी मार्केट में आ सकती हैं और उससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. Isn't it? My dear boy, you are mad. Now अब जो मिस्टर बॉलिन हैं वो नाइफ से हंसी में कहते हैं कि My dear boy, तुम पागल हो. Then he said, No sir, honestly it's true when what I say. Don't you see that with volume alone will completely overwhelm them? Now अब नाइप कहता है कि नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ. ओके, मैं सच बोल रहा हूँ. क्या आप देखते नहीं कि बड़ी बड़ी जो बुक्स होती हैं, जो बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनके वज़न ज़्यादा होते हैं, उससे लोगों को वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. ओके, दिस मशीन कैन प्रोड्यूस अ 5,000 वर्ड स्टोरी. और जो हमारी जो मशीन है, ओके, हमारा जो ग्रामेटिजेटर है ये 5,000 वर्ड की स्टोरी को लिख सकता है. ओके, ऑल टाइप्ड एंड रेडी फॉर डिस्पैच इन 30 सेकेंड्स. और वो भी कितने सेकेंड्स में? विद इन 30 सेकेंड्स. मतलब 30 सेकेंड्स में कितनी वर्ड्स की स्टोरी को लिख सकता है? 5,000 वर्ड्स की स्टोरी को लिख सकता है. ओके, हाउ कैन द राइटर कंप्लीट विद दैट? आई आस्क यू मिस्टर बॉलिन, हाउ? और आप खुद ही बताइए कि ऐसे राइटर, हाउ कैन द राइटर्स कंप्लीट विद दैट? और फिर खुद ही बताइए कि हमारी मशीन से कैसे वो और जो राइटर्स हैं वो रेस लगा पाएंगे. आप खुद ही सोचिए, हमारी मशीन 30 सेकेंड्स में 5,000 वर्ड्स को लिखती है और उनकी मशीन्स बहुत कम शब्दों में लिखती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगाती है. तो हमारी कंपटीशन तो वो वैसे ही नहीं कर सकते. ओके, हमारी रेस तो वैसे ही नहीं कर सकते. उनकी मशीन इतनी हल्की चलती है, इतनी लेट चलती है. Isn't it? Then, at that point, Adolf Knight noticed a slight change in the man's expression, an extra brightness in the eyes, the nostrils distending, the whole face becoming still, almost rigid. Now, ऐसा कहते देख जो एडोल्फ नाइट है उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो रहा था. ओके, उसके फेस एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी. मिस्टर बॉलिन ने नोटिस किया कि उसके जो फेस है उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, एक्स्ट्रा ब्राइट. उसकी आंखों में उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई हैं. आंखें ब्राइट होने का मतलब है वो बहुत खुश है. ओके, और खुशी की वजह से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है. ओके, उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स मीन्स द होल्स इन द नोज, जो 2 होल्स होते हैं नोज के. ओके, उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो उसके एंटायर फेस को, पूरे फेस को बहुत ज़्यादा रिजिड बना रहे हैं. रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा ही इज़ डिटरमेंट. वो डिटरमेंट है कि हमारी शॉर्ट स्टोरी ही, हमारी जो बुक है शॉर्ट स्टोरी की, वो ही सबसे आगे जाएगी क्योंकि सबसे फास्ट है वो, सबसे इनफ्लक्स है वो. ओके, now he said quickly he continued nowadays Mr. Bolin Mr. Bolin, the handmade article hasn't a hope. Now this time अब जो मिस्टर बॉलिन हैं वो
सॉरी, जो एडोल्फ नाइप है वो दोबारा शुरू करने लगता है राइटिंग, दोबारा अपनी स्टोरी को लिखने लगता है। ओके, एंड नाउ डेज, सॉरी, नो नो नो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नाइप जो है वो दोबारा अपनी बात को बोलता है, वो दोबारा शुरू हो जाता है अपनी बात को बोलते हुए, क्विकली ही कॉन्टिन्यूड, मतलब वो दोबारा बोलता है कि नाउ डेज मिस्टर बोलिन द हैंडमेड आर्टिकल्स हैज़ेंट अ होप। ओके, मीन्स आज के दिन तो जो हाथ से बने आर्टिकल्स हैं उनकी तो कोई वो ही वैल्यू ही नहीं रही है, जो हाथ से बने चीज़ें हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब जो हाथ से आर्टिकल्स बनाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आजकल सब मशीनरी का ज़माना है, isn't it? It can't possible complete with mass production, especially in this country. You know that carpets, chairs, shoes, bricks, crockery, anything you like to mention, they are all made by machinery now. देखिए आज के दिन तो हाथ से बना हुआ कुछ जाता ही नहीं है। आप किसी की बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट द कारपेट, चेयर, शूज़, ब्रिक्स, क्रॉकरी, किसी की भी बात करें, हर चीज़ कहाँ से बनी है? मशीन से बनी है। हर चीज़ मशीनरी है, हर चीज़ आप कह सकते हैं मशीन से मिलके बनी है। ओके, मशीन की हेल्प से बनी है। ओके, मीन्स मशीन ही असिस्ट करती है हर चीज़ को बनाने में, इजंट इट? वेदर इट इज़ अ स्मॉल रेजर, वेदर अ बिग हाउस। और ये सच भी बात है। ओके, आजकल हाथ के बने चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मशीन से बनी चीज़ों की वैल्यू है। ओके, आप खुद ही सोचिए, वो फ्लावर जो वेसल्स आते थे, ओके, जो फ्लावर वेसल्स आते थे, जो फ्लावर पॉट्स होते थे, पहले के दिन लोग हाथ से बनाते थे, isn't it? और नाउ दे आर मेकिंग विद द लाइक मशीन। सो उस मशीन से बनाने में उन्हें मतलब, क्योंकि अब मशीन से बनाते तो अब वो और कुछ भी डाल सकते हैं अपने आर्ट में, अपने आर्ट को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं बाय एडिंग सम कलर, बाय एडिंग सम पेयर्स, बाय एडिंग समथिंग मोर अट्रैक्टिव। ओके, और वहीं एक इंसान, गरीब इंसान अगर हाथ से बना रहा है तो उसकी कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बोरिंग है और फेंट है, फेट है, सॉरी। ओके, तो ये सच में आज का ज़माना है कि जो मशीन से चीज़ें बनी हुई हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं मैनकाइंड को। ओके, सो द क्वालिटी मे बी inferior, but that doesn't matter. It's the cost of production that counts. And short stories, well, they are just another product like carpets and chairs, and no one cares how you produce them so long as you deliver the goods. और नाइप कहता है that चाहे वो मतलब चाहे उस प्रोडक्ट की, चाहे उस चीज़ की, तो कहते हैं कि भले ही जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत कम हो, मतलब क्वालिटी बहुत गिरी हुई हो, पर फिर भी वो लोग क्या देखेंगे? दे विल सी दैट इट इज़ द, तो बिल्कुल मीन्स चाहे क्वालिटी गिरी हुई हो पर वो किसकी कॉस्ट देखेंगे? प्रोडक्शन की कॉस्ट देखेंगे, हाउ द प्रोडक्शन इज, प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो एंड स्टोरीज, वेल, they are just another product like carpet and chair, and no one cares now you produce them so long as you deliver the goods। मतलब, और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं लाइक कारपेट्स, चेयर्स, चाहे आपकी ये शॉर्ट स्टोरी हुई, ओके, इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है कि हाँ इसने कितनी मेहनत करी होगी, isn't it? बस ये क्या देखते हैं कि कितना अच्छे से प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, कितना अच्छे, मतलब कितना अच्छा प्रोडक्ट है और कितना बुरा प्रोडक्ट है। अच्छा प्रोडक्ट है तो ले लेंगे, बुरा प्रोडक्ट है तो फेंक देंगे, चाहे वो बुरे प्रोडक्ट वाले ने भी कितनी मेहनत की हो, isn't it? We'll sell them wholesale, Mr. Bolin. We'll undercut every writer in the country. We'll corner the market. Now we'll sell them wholesale, मतलब we'll sell them the entire sale। जो सारी स्टोरी बुक्स हैं हम उनको सेल करते हैं, मिस्टर बॉलिन ने कहा, सॉरी नाइप कह रहा है। ओके, नाइप कह रहा है कि वील सेल देम होलसेल, मतलब हम उन्हें होलसेल सेल करते हैं। ओके, बट वील अंडरकट एवरी राइटर इन द कंट्री, विल कॉर्नर द मार्केट, मतलब
हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है दैट विल अंडर कट मीन्स दैट विल लेफ्ट बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द राइटर्स, और सबसे आगे हमारी स्टोरी ही रहेगी। ओके, इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट, मार्केट में सबसे आगे जो है वो हमारी शॉर्ट स्टोरी ही होगी। ओके, देन Mr. Bolin edged. Now, Mr. Bolin, he edged up straighter in his chair. He was leaning forward now, both elbows on the desk and face alert, the small brown eyes resting on the speak. Now, अब मिस्टर बॉलिन जो है वो खड़े हो जाते हैं चेयर से और आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे तरफ मतलब झुकते हैं और उनकी दोनों एल्बोज जो है वो डेस्क पर रखी हैं, फेस बहुत ज़्यादा अलर्ट है और उनकी दोनों आईब्रोज जो है वो स्ट्रेट है। ओके, अब वो आराम से बोलते हैं, ओके, आई स्टिल थिंक इट्स इम्प्रैक्टिकेबल टाइप, 40,000 अ वीक क्राइड एडल्ट नाइट। नाउ मिस्टर बोलिन सेड दैट आई स्टिल थिंक इट्स इम्प्रैक्टिकेबल नाइट, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब हाँ, ये ज़्यादा फेमस नहीं हो सकता। ओके, ये बुक हमारी इम्प्रैक्टिकेबल है। देन ही सेड 40,000 अ वीक क्राइड एडल्ट नाइट, एंड इफ वी हैव द प्राइस मेकिंग इट 20,000 अ वीक दैट स्टिल $1 million अ ईयर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो शॉर्ट स्टोरी बुक है वो 40,000 हर वीक में कितने ले रहे हैं लोग, कितने मतलब प्राइसेस में बिकती है 40,000, और अगर मैं इसका आधा भी करूँ तो 20,000 अ वीक, इजंट इट, ये में 20,000 अ वीक बनाती है, दैट्स स्टिल $1 million अ ईयर। ये काफ़ी है, दैट इज़ $1 million अ ईयर, मतलब ये एक ईयर में मिलियंस ऑफ मतलब प्राइजेस हम कर सकते हैं। एंड सॉफ्टली ही एडेड, यू डिडंट गेट एनी $1 million अ ईयर फॉर बिल्डिंग द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डिड यू मिस्टर बोलिन? और क्या आपने जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स बनाए हैं, क्या उसमें आपने कभी मिलियंस में प्राइजेस जाते हुए देखे थे? नहीं देखे थे। हमारा जो न्यू कैलकुलेटर है, ये जो न्यू ग्रामेटिजेटर है, इसमें ही यू हैव सीन दैट इट इज़ गेटिंग $1 million अ ईयर। ओके, बट seriously, now night, did you know really, do you know really think they had buy them? मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है नाइफ कि वो इसको वाई करेंगे, वो इसको खरीदेंगे? देन नाइफ सेड, लिसन मिस्टर बोलिन, who on earth is going to want custom made stories when they are get the old kind at a half price? It stands to reason, doesn't it? Now वो कहता है कि listen मिस्टर बोलिन, who on the earth is going to want custom made stories when they can get the other kind of half the piece? मतलब कौन ये चाहता है कि वो कस्टम मेड मतलब हैंड मेड जो है शॉर्ट स्टोरीज को लें, ओके, जबकि उन्हें अच्छी शॉर्ट स्टोरी सिर्फ हाफ प्राइस में मिल रही हो। ओके, जबकि उन्हें दूसरा जो आप कह सकते हैं एक अच्छा ग्रामेटिजेटर हाफ प्राइस में मिल रहा हो, तो कोई चाहेगा कि वो कस्टम मेड स्टोरीज को लें। ओके, इट स्टैंड्स टू रीजन, डजंट इट? मतलब ये एक रीज़न खड़ा करता है, मतलब एक रीज़न है इसके पीछे। ओके, डजंट इट, मतलब क्या मतलब सच में इसके पीछे एक रीज़न है। एंड हाउ विल यू सेल देम, हु विल यू से हैज़ रिटन देम? नाउ एडोल्फ नाइट, सॉरी, मिस्टर बॉलिन सेड दैट हाउ विल यू एंड हाउ विल यू सेल देम, मतलब अब तुम उन्हें कैसे बेचोगे, तुम उसे कैसे बेचोगे? मिस्टर बॉलिन, एंड हु विल यू से हैज़ रिटन दैम, और किनका नाम बताओ कि किसने लिखा है इस शॉर्ट स्टोरी को? मतलब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कोई फेमस भी तो होना चाहिए। तो नाइट जो है, ही इज़ नॉट अ वेरी फेमस फेलो, इजंट इट? दैट्स वाई ही हैज़ क्वेश्चनिंग टू मिस्टर बॉलिन कि किनका नाम दोगे, किसने लिखा है, क्या बताओगे? कोई फेमस लाइक पोइट या कोई फेमस राइटर तो होना चाहिए इस चीज़ के लिए। आई एम नॉट अ फेमस वन, आई एम नॉट अ रिनाउंड वन। Okay, then Adolf Knight, then Mr. Bolin said, we'll set up our own literacy agency and we'll distribute them through that. मतलब हम अपनी लिटरेरी एजेंसी खोलेंगे और हम अपनी बुक्स को खुद लोगों तक मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खुद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड विल इन्वेंट ऑल द नेम्स वी वांट फॉर द राइटर्स,
और हम अपने नाम खुद इन्वेंट करेंगे राइटर्स के लिए। ओके, पहले राइटर्स के नाम के लिए उन्होंने दूसरी बुक को रेफ़र किया था, दूसरी बुक्स को, पर इस बार हम जो बुक राइटर्स के नेम लिखेंगे वो हम अपने खुद के सोच पे लिखेंगे। ओके, then Mr. Bolin said that I don't like it night. To me, the smacks of trickery, does it not? Now, Mr. Bolin said कि नहीं, मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया। ओके, मुझे ये तरीका मुझे नहीं, मतलब तरीका पसंद नहीं आया। टू मी दैट स्मैक्स ऑफ ट्रिकरी, डज इट नॉट, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत चालाकी वाला काम है। स्मैक्स ऑफ ट्रिकरी का मतलब है चालाकी की, आप कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस तरीके में चालाकी की बू आ रही है। ओके, चालाकी की जो बदबू होती है वो आ रही है। डज इट नॉट, मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता? ओके, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सही नहीं रहेगी? एंड अनदर थिंग, देयर इजंट एंड अनदर थिंग मिस्टर बोलिन, and another thing Mr. Bolin, there is all manner of valuable byproduct once you have got started. Take advertising, for example, beer manufacturers and people like that are willing to pay good money these days. If famous writer will lend their names to their products, why my heaven, Mr. Bolin, this isn't any children's plaything. We are talking about its big business. मतलब कहना चाह रहा है कि, और दूसरी बात तो ये मिस्टर बॉलिन कि there's all manner of valuable by product once you got started. मतलब अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो हर तरह के, हर मैनर में वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। ओके, टेक एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमें एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट्स लेनी चाहिए। मतलब हमें अपने जो ये ग्रामेटिजेटर है इसका एक ऐड, एक आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट हमें निकालना चाहिए। लाइक बियर मैन्युफैक्चरर एंड पीपल थिंक लाइक that are willing to pay good money these days of a famous writer will lend their names to their products. मतलब जिस तरीके जो फेमस राइटर्स हैं वो अच्छे अच्छे रुपए अपनी बुक्स पर डाल रहे हैं फॉर बिकमिंग फेमस। ओके, तो इसी तरीके से हमें भी एडवर्टाइज़ करना चाहिए अपनी बुक, अपने इस ग्रामेटिजेटर की, मतलब अपने इस बुक को, जो हमने बुक लिखी है इस बुक को। Isn't it? Why my heaven, Mr. Wallen? This isn't any children's plaything. We are talking about it's a big business. Don't get too ambitious, my boy. Now, Mr. Wallen says कि ये देखो Adolf, it is not a very children play. Okay, ये बच्चों का खेल नहीं है। ओके, हम बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओके, डोंट यू गेट टू एम्बिशियस माई बॉय, मतलब ज़्यादा एम्बिशियस मत हो, ज़्यादा मतलब एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैकबेथ वॉज एम्बिशियस। ओके, मतलब कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता है किंग डंकन को मारने। इसी तरीके से यहाँ पे कि किसी भी हद तक मत जाओ। ओके, अपने इस बुक को रिनाउंड बनाने के चक्कर में किसी भी हद तक मत जाओ। Isn't it? Don't be got ambitious. Then, और दूसरी चीज़ तो ये है कि इसका कोई रीज़न नहीं है कि हम तुम्हारा नाम मतलब हम तुम्हारा नाम मिस्टर बॉलिन ओके कुछ बेटर स्टोरीज पे नहीं लिख रहे हैं। ओके, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा नाम मतलब अपनी स्टोरीज़ पे, जो स्टोरीज़ हमने बनाई हो उन स्टोरीज़ पे नहीं लिखे हैं, तो तुम्हारी इच्छा। ओके, माई गुडनेस नाइट, what should I want for that? I don't know, sir, except that some writers get to be very much respected, like Mr. Eric Gardner or Kathleen Morris. For example, we have got to have names, and I am certainly thinking of using my own on one or two stories just to help out. मतलब जैसे कि जो मिस्टर एरिक गार्डनर हैं,
कैथलीन मॉरिस हैं, इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ पे, अपनी पूरी नॉवल पे अपना नाम लिखा है। इसी तरीके से एक दो पे मैं अपना नाम भी लिखवाना चाहता हूँ, जिससे कि ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ये थोड़ी फेमस हो जाएं। ओके, क्योंकि हम जब किसी का डायरेक्ट नेम पढ़ते हैं तो उसकी बायोग्राफी के बारे में सोच के हम लोग बुक ले आते हैं कि चलो देखते हैं इसकी बायोग्राफी में क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा कि नहीं, इजंट इट? सो यही नाइट ने सोचा। ओके, नाउ a writer, then he said, a writer, Mr. Bolin said, musing. Well, it would surely surprise them over the club when they saw my name in the magazines, the good magazines. मतलब कहना चाह रहे हैं कि एक राइटर सच में, मिस्टर बॉलिन सेड, म्यूजिंग, ही इज सिटिंग वेरी नर्वसली। म्यूजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इस तरीके से, मेरा एक राइटर इस तरीके से, है ना। वेल, इट वुड surely surprise them over at the club when they saw me my name in the magazine. मतलब जब वो मेरा नाम देखेंगे तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लब में देखा था। ओके, मुझे उन्होंने क्लब में देखा था। ओके, और अगर मैंने अपना नाम लिखा मैगज़ीन पे तो दे विल गेट स्टन्ड, और उनमें से कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सब यही सोचेंगे ये तो क्लब में जाता है तो इसकी हम मैगज़ीन क्यों पढ़ें, इज़न्ट इट? तो इसी तरीके से ही सेड, देन दैट्स राइट मिस्टर बॉलिन। एडोल्फ नाइफ सेड कि हाँ, इट्स राइट, दैट्स राइट मिस्टर बॉलिन। देन ही सेड दैट, for a moment a dreamy faraway look come into Mr. Bolin's eyes and he smiled. और कुछ समय के लिए एक दिन का समय उनके दिन का सपना उनकी आंखों में आया। ओके, ड्रीमी faraway look came into Mr. Bolin, मतलब एक faraway जो है वो मिस्टर बॉलिन की तरफ आ रहा था। ओके, it was coming towards him, और इस चीज़ को देखकर he got like very he smiled. Okay, he smiled, he gave him a smile. Then he stirred himself and began leafing through the plants that they lay before him. और फिर वो बैठे और उन्होंने फिर से सोचा उस प्लान पे ही, पॉन्डर अपॉन दैट प्लान जो उन्होंने पहले सोचा था कि इस पे मेरा नाम होना चाहिए, इज़न्ट इट? इस तरीके से उन्होंने उस प्लान पे सोचा। देन वन थिंग आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड नाउ, where do the plots come from? The machine can't possibly invent plots. Now वो कहते हैं कि पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती नाइप। ओके, वन थिंग आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड नाइप, कि जो प्लॉट है कहाँ से आ रहे हैं, ये जो स्टोरीज़ में प्लॉट्स हम करते हैं ये आए कहाँ से? ओके, क्योंकि जो मशीन है, जो हमारी मशीन है, वो तो प्लॉट्स को इन्वेंट कर ही नहीं सकती। इट कैन नॉट इन्वेंट द प्लॉट, इज़न्ट इट? तो ये जो प्लॉट्स हैं आए कहाँ से? और यहाँ पे हमारा जो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, सो story will be continued. This is going to be a third part. Now we are left with our just 3 parts. Okay, so stay tuned, and if you love this short story, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. Bye guys.